Okay, till now three students have joined. Okay, Amit Kumar is also joining. So, as you know, the scheduled class will start from 9:05. In the meantime, if you have any kind of query or doubts related with previous sessions, please ask your doubts. Manish Kumar. So, what we was studying in previous session? Yes, student. I asked what we was studying in previous session. सभी लोग ऑन करके सो गए क्या?
Okay. Avalanche effect, strength and weakness of DES. Hema Gupta has responded. Okay. Okay. Okay, yes. DS decryption we have also studied. Okay, as in the assignment, I asked about what are the various terms related with cryptography, and in that you have answered that. Most of you have answered that one of the term which is related with cryptography is cryptanalysis. Okay. So can anyone tell me now what is cryptanalysis? In previous classes, we have completed cryptanalysis, and we have also analyzed some of the method or some of the cryptographic method, and we also analyze in that where we talked about the cryptanalysis. Does anyone remember that what is cryptanalysis? Yes, student, please reply. What is cryptanalysis? And we talked about cryptanalysis. I want to know what is cryptanalysis. And you have answered this in your assignment also. और सर साइफर टेक्स्ट करने में जो भी प्रिंसिपल एल्गोरिदम्स अप्लाई करते हैं Okay. पैसेज को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने में उसी को क्रिप्टोनालिसिस बोलते हैं। उसी को क्रिप्टोनालिसिस कहा जाता है। ओके, इट मीन्स साइफर टेक्स्ट में जो एल्गोरिथम को हम बेसिकली, आपके कहने का मतलब है एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं हम लोग, है ना? यस सर, जो भी प्रिंसिपल्स जो भी कुछ अप्लाई करते हैं उसी को। ओके 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 ओके। एनीवन एल्स? आंसर तो सभी ने लिखा है, यहाँ जितने हैं लगभग सभी ने असाइनमेंट सबमिट किया है, एंड आई हैव सीन द कॉपी आल्सो। एंड व्हाई ओनली वन रिस्पॉन्स? सर इसमें एक और की पॉइंट है कि हमें की के बारे में नहीं पता होता है। Yes, very good, very good. We does not know about key. Unknown होता है key हमारा. Okay, one of the property of cryptanalysis that unknown key होता है, क्योंकि अगर हम क्रिप्टोग्राफी का यूज कर रहे हैं तो इट सिंपली मीन्स दैट कि हम क्या कर रहे हैं, वी आर एनालिसिस ऑफ व्हाट एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम, बाय विच वी आर डूइंग इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। ओके, उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। बट हियर कोई भी इंक्रिप्शन, जैसे कि अगर हम कोई भी इंक्रिप्शन करते हैं तो उसमें पहला क्या होता है, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट होता है, और दूसरा इनपुट क्या जाता है, दूसरा इनपुट आपका की जाता है, ठीक है ना?
Somebody trying to join? Okay, Priya Raj. Okay, so we does not know about key, and we have the ciphertext. Okay, and with the help of ciphertext, we want to analyze that what is this algorithm is basically doing. What is the functionality of this algorithm? Aman Raj, Shobit Raj. Okay, so this is about the cryptanalysis. And one more thing I want to ask you before starting today's session, that we also talked about in the previous session, there are certain type of attack, cryptanalytic attack किया जाता है आपके किस पे, इंक्रिप्शन या जो एल्गोरिथम है उस पे क्रिप्टोनालिटिक अटैक किया जाता है. एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो इन डिटेल दैट वी हैव 4 काइंड्स ऑफ क्रिप्टोनालिटिक अटैक इन आवर सिस्टम. Okay, we have 4 kinds of cryptanalytic attack in our system. तो ये cryptanalytic attack basically it means कि हमारे पास कुछ information है and remaining information को हम gather करना चाहते हैं, या simply कहा जाए cryptanalytic का simple मतलब हुआ कि we have the information related with unreadable data, which is basically our ciphertext. We have information about this, and we want to convert this so that a readable information we will get, which is known as plain text. Okay, and basically we have 4 kinds of attack, and in that I told you that there are ciphertext only attack, in this the intruder have the ciphertext only, and he want to with the analysis, जैसे मैंने आपको एक बताया था, there is a frequency analysis, कि हमारे जो plain text होता है उसमें जो हमारे कुछ letters होते हैं, that has a high probability like E. तो इस टाइप की एनालिसिस करके हम क्या करना चाहते हैं कि वी वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड वी वांट टू यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिटेक्ट द प्लेन टेक्स्ट. तो वहीं पे क्रिप्टोनालिटिक अटैक किया जाता है, और उसमें एक टाइप है आपका साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक. इसमें आपका जो इंट्रूडर होगा उसके पास सिर्फ और सिर्फ अनरीडेबल फॉर्मेट में डेटा होगा, और वो उसको चाहेगा कि ही वांट्स टू कन्वर्ट इनटू द प्लेन टेक्स्ट की रीडेबल फॉर्मेट में आ जाए. ओके, नेक्स्ट टाइप का अटैक मैंने आपको बताया था, नॉन प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक. मतलब कि यहां पे ये होता है कि आपका जो इंट्रूडर है और जो सेंडर है, इट मींस मैं यहां पे एक ब्लॉक डायग्राम पहले बना दूं कि आपका यहां पे सेंडर है, ये आपका रिसीवर है. somebody trying to join? जफर इमाम. ओके, सेंडर है, ये क्या करेगा, ये यही जो कि आपका इसको इनपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ की, और ये इसको साइफर टेक्स्ट भेजेगा, किसको, साइफर टेक्स्ट भेजेगा रिसीवर, और रिसीवर फिर इसको विद द हेल्प ऑफ की और एल्गोरिथम के हेल्प से क्या करेगा, इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा. तो अब आपका बीच में कोई इंट्रूडर है. ओके, ये आपका एक इंट्रूडर है, एंड
नॉन प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक में ये क्या है कि देयर वाज अ कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड इंट्रूडर इन द पास्ट हिस्ट्री. So in this communication, intruder has some known plain text and the ciphertext values. मतलब पहले कभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले कभी इंट्रूडर और सेंडर के बीच में बातचीत हुई थी और इस बातचीत के दौरान प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन जो क्रिएट हुआ था वो इंट्रूडर के पास है. एंड विथ द हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन, इफ द इंट्रूडर वांट्स टू डिटेक्ट दैट कि अब उसका जो क्या होगा, क्या एल्गोरिथम है, क्या वर्किंग है, उसको वो डिटेक्ट करना चाह रहा है कि क्या पैटर्न हो सकता है, उसको वो कहलाता है आपका प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक. नेक्स्ट टाइप का अटैक में आता है आपका चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक. चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक में वो सिचुएशन है जबकि आपका सेंडर ने साइफर टेक्स्ट भेज दिया है. अब किसी कारणवश आपका इंट्रूडर को एक्सेस हो गया सेंडर का सिस्टम का, सेंडर के सिस्टम का एक्सेस हो गया इंट्रूडर को. तो इंट्रूडर वहां पे क्या करेगा, इंट्रूडर वहां पे कुछ प्लेन टेक्स्ट क्रिएट करेगा और उसका साइफर टेक्स्ट वो बनाएगा. तो इसको एक्सेस हो गया इसका, ये कुछ इसको प्लेन टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा PT1, PT2, PT3 इस टाइप से, और इसके अलॉन्ग विथ इसको क्या होगा, इसका साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा CT1, CT2, CT3. और with these help of information he wants to detect that what is the possible plain text of this cipher text. रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कुछ करके वो पाना चाहेगा. फिर लास्ट मैंने आपको बताया था चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक. चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक, और इसमें आपका क्या होता था, इसमें होता था इंट्रूडर को एक्सेस हो जाता था रिसीवर का, और उसको रिसीवर को वो क्या करता था, कुछ साइफर टेक्स्ट प्रोवाइड करता था CT1, CT2, CT3 इस टाइप का, और उसके अलॉन्ग विथ उसको प्लेन टेक्स्ट मिल जाता था. तो अब वो क्या करता था, वो चाहता था कि ये जो बेसिकली कम्युनिकेशन हुआ है इसको, उसका वो प्लेन टेक्स्ट कैसे पा सकेगा. ठीक है, तो दीज आर सर्टेन 4 टाइप ऑफ क्रिप्टोनालिटिक अटैक जो परफॉर्म किए जाते थे. और जो अभी हम पढ़ रहे हैं दैट इज द कैटेगरी जो आपका सिमेट्रिक में यूज किया जाता है. वहां पे आपका बेसिकली चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक को यूज किया जाता है. ठीक है, चोजन प्लेन टेक्स्ट को अटैक को यूज किया जाता है फॉर द DS, जो कि आपका डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस का पार्ट है आपका. बहुत इसी पे वो वर्क करता है कि उसके पास कुछ प्लेन टेक्स्ट होता है, उसको वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है. इट मींस कि सभी को DS का वर्किंग तो पता है, सभी को DS का वर्किंग तो पता है, बट यहां पे हिडन क्या है, DS में हिडन क्या है, हिडन है आपका सिर्फ और सिर्फ ये की, और जो प्लेन टेक्स्ट भेजा गया, ये दोनों चीज हिडन है. तो ये इंफॉर्मेशन को पाने के लिए वो इंट्रूडर क्या हो सकता है, अपने सिस्टम में भी DS को अप्लाई कर सकता है. तो वो क्या करेगा, इस DS को अप्लाई करके वो प्लेन टेक्स्ट को क्या करेगा, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा. somebody trying to join? निशा कुमारी. ओके, तो क्या होगा, इंट्रूडर भी अपना DS लगा करके क्या करेगा, वो कुछ प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा. अब ये कन्वर्जन हो गया, तो इट मींस ही हैव अ पेयर ऑफ प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट. तो अब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर इस टाइप का सिनेरियो है जहां पे उसके पास कुछ प्लेन टेक्स्ट अभी जो प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ उसका रिलेशन है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन ही वांट्स टू कन्वर्ट दैट कि आपका जो अनरीडेबल डेटा उसको मिला, साइफर टेक्स्ट जो उसको मिला, कैसे वो उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा.
ये उसको रिलेशन विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस जो कम्युनिकेशन, मतलब कि PT1 PT2 या PT2 PT3 जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हुए, उनसे कैसे ये पा सकेगा, यही है आपका मेनली डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस अटैक का मेन हार्ट. ओके, नाउ moving upon to the next important point related with this cryptanalysis attack. Do you know about a operation known as this XOR? This is symbol of XOR. आप सभी को XOR पता है? Please do let me know. Yes, sir. Okay, Goldie has a knowledge about this. What about others? Hima has knowledge. What about others? Right now 19 students. Shobhit, Rimjim Raj, okay, Deepak Kumar कोई है, ज्वाइन करें क्लास. Okay, Kajal, okay, चलिए. Now I have a question. Please answer this. Do you know? I think you know about what is commutative property. Yes, sir. What is commutative property? You know about this. Now my next question is XOR operation is commutative or not? Is XOR operation is commutative or not? XOR operation commutative होता है या नहीं होता? Yes student, please let me know, XOR commutative होता है या नहीं होता? होता है सर. होता है. हिमा गुप्ता का भी कहना है यस सर. Okay, 2 people has responded. Shobhit, yes sir. Kajal, okay, few people are responding, but others का पता नहीं, सो रहे हैं क्या शायद. Now my next question is, चलिए मैं नेम जो अभी मैं वर्किंग कर रहा हूं उसका नेम मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग वर्किंग सीख लेते हैं कि उसकी वर्किंग क्या होती है. अगर हम दो वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है हमारे पास. ओके, वी हैव 2 रैंडम वेरिएबल. एक है आपका x1 और एक है आपका x2. ओके, सिंगल बिट के हैं x1 x2. बाइनरी वेरिएबल्स हैं, रैंडम बाइनरी वेरिएबल्स हैं. हु इज दिस प्रोफेसर्स मीन? आई डोंट थिंक कोई ऐसा होगा आपके क्लास में. ओके, तो x1 x2 हमारे पास दो वेरिएबल हैं. ये फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी वेरिएबल्स हैं और ये जो है ये सिंगल बिट के बाइनरी वेरिएबल्स है. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वी हैव या हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैव रिलेटेड विथ x1 एंड x2? My question is straightforward. How many possibilities we have related with x1 and x2? 4. Very good. 4 possibilities. Either both can be 0, one can be 0 and 1, 1, 1. Now, if I want to check that whether x1 is equal to x2, whether x1 is equal to x2, how we can write this with the help of XOR operation? अगर एक जोड़ का आउटपुट 1 हुआ तो x1 is equal to x2 होगा. But how we know that XOR, with the help of XOR में रिलेशन कैसे लिखाएगा इसका? Should be 1.
ये होगा x1 XOR x2 is equal to 0. No, it Yes, should be 1. Output should be 1. output will be 1 when they are different. x1 XOR x2 will be 1 when they are different. Yes, sir. Okay, so ये जो एनालिसिस है यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मैं डेप्थ में अब जा रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 0? 1/2. Yes, very good. It is 1/2, and probability of x2 is equal to 0. It is also 1/2. Okay. Now we want to know that what is the probability of this. It will also 1/2. It will be also 1/2. And if we write that probability of a variable, probability मतलब मैं लिखता हूं कि x1 की probability 0 होने के लिए, x1 की probability 0 होने के लिए इसको अगर मैं p लिखता हूं तो x1 की probability 1 होने के लिए इसकी probability मैं लिख सकता हूं 1 minus p. Yes, student. Yes, sir. ओके, सो अगर इस रिलेशन को हमें लिखना है, बोथ आइदर ये क्या होगा, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 0 होगा, यही होगा ना? Yes, sir. अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस q. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, इज इक्वल टू अगर q लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस q. Yes, sir. ओके, तो अब देखिए, अब इसी रिलेशन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है. ये जो रिलेशन 1/2 आपने डायरेक्टली बोला, मैं इसको अगर लिखना चाहूं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो आइदर ये होगा या फिर क्या होगा, या फिर आपका होगा x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू 1, यही होगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p इंटू q. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस p इंटू 1 माइनस q. ओके, Yes, sir. और अगर अनुराग कुमार निराला इज ज्वाइनिंग. ओके, सो अगर हम यहां पे अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/2 इन द बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब इफ देयर विल बी नो एरर इन दिस थिंग देन द वैल्यू विल बी कम एज अ 1/2, है कि नहीं? ये तो आप पहले भी बता चुके हैं, इसकी वैल्यू 1/2 होगी. बट इफ देयर विल बी एनी एरर तो ये क्या हो जाएगा, एनी एरर अगर आपका आएगा तो 2 इंटू आपका E1 इंटू E2. ओके, क्योंकि अगर आपका एरर प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा आपका, सिंपली आपका P में कुछ एरर है और Q में कुछ एरर है. ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, P विल बी रिटन लाइक दिस 1/2 प्लस एप्सिलॉन 1 एंड Q विल बी रिटन लाइक 1/2 प्लस E2 एप्सिलॉन 2. अगर आप इस रिलेशन में रखेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू. तो इसी को कहा जाता है पाइलिंग अप ऑफ 2 वेरिएबल. ये जो अभी हमने इतना किया कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारा 2 वेरिएबल्स का सेम होने का, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी है 1/2 प्लस 2 ऑफ एप्सिलॉन 1 इंटू एप्सिलॉन 2. Okay, and this mechanism, this whole thing is called as a piling up of 2 variable, and it is very important to understand the linear approximation. Okay, अब सबसे पहली बात आती है व्हाट इज लीनियर क्रिप्टोएनालिसिस.
तो लीनियर क्रिप्टोएनालिसिस क्या है कि वी वांट टू लिनियराइज all the non-linear function of DES. And how we will do that? What is the non-linear function related with DS? And the non-linear function which is related with DS is known as, give me a moment student, it is known as S box. मैंने पहले भी बताया है आपको, पूरा जो पावर है आपका डीएस का वो आपका एस बॉक्स में है, तो यही होता है आपका नॉन लीनियर, बाकी सारी चीजें लीनियर है, बाकी सारी चीजें लीनियर है. देयर इज अ रिलेशन, इवन इनिशियल परम्यूटेशन, फाइनल परम्यूटेशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, सब कुछ लीनियर होता है. देयर इज अ मेथड वी हैव, एंड इफ वी हैव सिंपल, मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इन वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं, बट कहीं भी मैंने आपको एस बॉक्स में नहीं बताया था कि एस बॉक्स, मैंने सिंपल बोला था इट इज गिवन, इट विल बी गिवन. तो जो नॉन लिनियरिटी होती है आपकी डीएस में वो ड्यू टू द एस बॉक्स होती है. ओके, इट इज ड्यू टू द एस बॉक्स. और लीनियर क्रिप्टोएनालिटिक अटैक अगर आपको करना है तो आप क्या करते हैं, नॉन लिनियरिटी को लिनियरिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. एंड हाउ वी कैन डू दैट? तो इस चीज को हम समझने के लिए सबसे पहले एस बॉक्स के कुछ फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं. और यहां मैं आपके लिए एक टेबल क्रिएट करता हूं 4x4. ओके, एंड इन दिस टेबल पहले तो देखते हैं कि इस एस बॉक्स को आप कन्वर्जन को समझ पाते या नहीं समझ पाते. वी हैव 0 0, we have 0 1, we have 1 0, we have 1 1, then we have 1 1, then we have 1 0, then we have 0 1, then we have 0 0, and here we have 4 times 0, then we have 0 0 0 1, then we have 0 0 1 0, then we have 0 0 1 1, then we have now next we have 1 1 0 0, 1 1 0 1, then we have 1 0 1 0, 0 1 double 0, 0 1 0 1, 0 0 1 0, 1 0 triple 1. ओके, दिस इज अ एस बॉक्स. एक एस बॉक्स है आपको गिवन. हम यहां पे आपको नॉन लिनियरिटी को लिनियरिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर हमारे पास इसमें इनपुट आया, इस एस बॉक्स में जो आपको इनपुट मिला 1 1 1 0, अब इसमें यह कहा गया कि फर्स्ट बिट और लास्ट बिट जो होता है वो डिटरमाइन करता है आपका कॉलम, और जो बाकी बिट होते हैं वो डिटरमाइन करता है आपका रो. फर्स्ट बिट एंड लास्ट बिट डिटरमाइंस कॉलम and rest of the bit determines the row. Then tell me, for this value of input what will be the output? Yes student, it is time for 1101. what? Yes Goldie, 1101. ओके, एक ये आंसर आया है 1101. ओके, एनीवन एल्स? हिमांशु का आंसर है 1001. 1001. दो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं. एनीवन एल्स? Yes student, please respond.
बाकी कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है क्या? 25 लोग यहाँ पे हैं और 2 रिस्पॉन्स आए हैं। ओके, और मैं ये कहना चाहूंगा बोथ आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज मैंने कहा फर्स्ट बिट एंड लास्ट बिट इट इज कॉलम। ये हो गया कॉलम 1 0 1 0, ये हो गया कॉलम। एंड मैंने कहा रेस्ट ऑफ द बिट डिटरमाइंस रो, रेस्ट बिट ये हो गया, इट डिटरमाइंस द रो। तो क्या हो गया यहां से, ये वैल्यू आएगी 0 1 0 1। यस हिमांशु? Yes, sir. ओके हिमांशु, डिड यू गॉट माय पॉइंट? हिमांशु, actually you have answered, that's why I am asking you. No? Okay. So मैंने क्या कहा कि आपका first bit and last bit it determines the column. Then in this input first bit is this and last bit is this and this determines the column. तो आपका क्या हो गया, आपका 1 and 0, 1 0 क्या है, यहाँ पे है। एंड मैंने क्या कहा, रेस्ट ऑफ द बिट डिटरमाइंस द रो वैल्यू। तो ये हो गया रेस्ट ऑफ द बिट, तो रेस्ट ऑफ द बिट डिटरमाइंस रो वैल्यू। सो यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें कहां पे मिला, यहाँ पे। सो दिस विल बी द आउटपुट। ओके, आई होप नाउ आई विल बी क्लियर। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, if we want to convert a input into output, then we have a total of 16 possibilities। 16 possibilities है ना, 0 0 0 1, इसका 16 वैल्यू कहाँ से आया जो आपने इंटर करा है? ये वैल्यू मैंने इनपुट एज ए लिया है कि मुझे इनपुट मिला है ये, ठीक है। जो आपने टेबल क्रिएट किया है वो टेबल के अंदर रैंडम एस बॉक्स मैं रैंडम बना रहा हूं, कुछ भी एस बॉक्स आप रैंडम बना सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके सर, ठीक है। तो दिस इज द सिचुएशन। नाउ इफ वी वांट टू कन्वर्ट, अगर हम इनपुट और आउटपुट को अगर हम सिर्फ देखना चाहेंगे, इनपुट और आउटपुट को देखना चाहेंगे, तो चलिए ऐसे आप बना सकते हैं इस टेबल को जो मैं अभी बनाने वाला हूं, क्योंकि इट इज नॉट वेरी ट्रिवियल टू मेक दिस टेबल। ओके, गिव मी अ मोमेंट स्टूडेंट। अच्छा, अभी जो मैंने बताया है वो समझने में अच्छा, अगर मैं बोलूं 4 टाइम्स 0 का क्या होगा, इनपुट अगर 4 टाइम्स 0 है तो आप इसको आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं 0 0 1 1। यस, 0 0 1 1, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना बनेगा, अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट कितना बनेगा, 16। तो इस 16 इनपुट के लिए 16 आउटपुट भी बनेगा। यस सर, यस सर। तो आप चाहें तो इस ये जो पूरा मैंने टेबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, इसको आप चाहें तो एक सिंपल इनपुट और आउटपुट टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने इनपुट लिया 4 टाइम्स 0, तो इसके लिए क्या आउटपुट बनेगा, 0 0 1 1। अगर हमने इनपुट लिया 0 0 1, तो हमारा आउटपुट क्या बनेगा, 0 0 1 0 0 1 0 1 और yes. हमारा 0 0, ठीक है। तो ये तो इस टाइप से टोटल हम क्या कर सकते हैं, 16 यहाँ पे इनपुट और 16 आउटपुट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इनपुट एंड आउटपुट, ये जो एस बॉक्स है इसको हम क्या कर सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लीनियरली हम इसको बना सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन कन्वर्ट अ रिलेशन, नॉन लीनियर रिलेशन, इनटू द लीनियर रिलेशन,
एंड इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस, तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे कि A1 है, I1 है, XOR A2 है, I2 है, XOR A3 है, I3 है, XOR A4 है, I4 है। मैंने ये 4 इनपुट लिए हैं, इनपुट बिट्स हैं हमारे, और हमारे पास तो 4 आउटपुट बिट आएगा। O1 XOR B2 O2 XOR B3 O3 XOR B4 O4। ये जो आपके आईज हैं, ये आई हैं, ये आपके रिप्रेजेंट करें इनपुट बिट को, और जो ये ओ हैं ये रिप्रेजेंट करें आउटपुट बिट को। एंड जो आपका ए एंड बी है, इट कैन बी आइदर 0 और 1, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कन्वर्ट एनी S box into the linear transformation with the help of XOR operation. So we can convert this 4-bit into the 16 cross 16 table. Okay. So अगर हमें लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस करनी होती है तो हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं। पहला स्टेप होता है कि फाइंड करें लीनियर approximation of non-linear parts of the encryption algorithm। मतलब जो हमारा इंक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप है कि हमारा जो नॉन लीनियर पार्ट है आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिथम का, उसको हम क्या करें, उसको फाइंड आउट करें, क्या लीनियर अप्रोक्सीमेशन उसका क्या होगा, फर्स्ट स्टेप। सर बट इसको एडवांटेज क्या होगा इसका, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम बेसिकली पता ये करना चाह रहे हैं कि क्या हम लीनियरली अटैक कर सकते हैं, क्या कोई लीनियर रिलेशन है हमारा, कि अगर हमने कुछ प्लेन टेक्स्ट दिया तो वो इस टाइप का साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा क्या, इस और जो ये प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है इसमें क्या कोई लीनियर रिलेशन है। अगर ऐसा लीनियर रिलेशन कोई प्रेजेंट है कि ये बिट इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, आपका 16 बिट इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, ये बिट इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है, इफ वी हैव एनी काइंड ऑफ दिस लीनियर रिलेशन, देन अगर आपके पास सिंपल हम लीनियर नाम पता होते हुए भी हम लोग प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं साइबर टेक्स्ट को। यस नाउ अगर बट देयर इज 16 राउंड, तो 16 इस बॉक्स है, सबके लिए अलग अलग होगा ना, तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट तो है, मैंने खुद तो बोला डिफिकल्ट है, बट देयर इज अ मैकेनिज्म वी कैन ब्रेक दैट। डिफिकल्ट तो है, मैं भी बोल रहा हूं कि डिफिकल्ट है, ठीक है। अब मैं आप जो पूछे उसका मैं एक सिंपल सा ये डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इफ वी हैव अ इनपुट x एंड अ आउटपुट y, वी नो दीज पॉइंट्स वैल्यूज। इन x के लिए y की वैल्यू क्या है हमको पता है, ये आप इस पे जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको मिलेगा। तो अगर हम एक अननोन वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दे x3, तो क्या आप इसका y का वैल्यू क्या होगा आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं? यस सर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक लीनियर रिलेशन, ये जो लीनियर रिलेशन हमारा आ रहा है, इस लीनियर रिलेशन को हम पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि क्या एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है। अगर है तो क्या हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है क्या हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट में या नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई अननोन चीज है, नोन चीज है, उसके लिए हमें क्या है, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपका जो यहाँ पे क्या है कि आपका x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। इफ यू नो द वैल्यू ऑफ x देन यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो इसी टाइप से इफ यू नो द वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट, कैन यू एबल टू डिटरमाइन द प्लेन टेक्स्ट, वी वांट टू नो दैट इज इफ इट इज पॉसिबल। और इसको मैंने, ये जो लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस का मेथड है ये आपका सबसे पहले डिजाइन किया गया था फॉर द डीएस आपका 1933 में।
ठीक है, 1933 में ये थ्योरेटिकल अटैक किया 93 लिखा है आपने, 1993। 1993 में, दिस इज 1993। ओके, तो 1993 में फर्स्ट टाइम इस पे एक थ्योरेटिकल अटैक, मतलब कि हमने थ्योरेटिकल के थ्रू जानने की कोशिश की थी कि क्या इस पे पॉसिबल है भी या नहीं है, और इसको फाइनली आपका देखिए कितने दिन बाद 2002 में ये प्रूफ किया गया कि यस वी कैन डू दैट लीनियर अटैक, बट इट विल टेक अ टाइम ऑल्सो। ओके, सो मैं स्टेप्स बता रहा था कि कैसे हम परफॉर्म करेंगे लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस को। तो सबसे पहले जितने भी नॉन लीनियर हमारे पास ये पार्ट्स होंगे इंक्रिप्शन एल्गोरिथम में, हम उसको क्या करेंगे, लीनियर अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट करेंगे, और हमारे पास जितने भी कंबाइन करेंगे हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एस बॉक्स विद द लीनियर ऑपरेशन डन ऑन द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। यहां तो हमने क्या किया कि आपका जो बेसिकली नॉन लीनियर ऑपरेशन था, क्या, मेनली एस बॉक्स का, तो एस बॉक्स का जो नॉन लीनियर ऑपरेशन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम जितने भी अदर लीनियर पार्ट हैं जैसे कि एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर आपका ऑपरेशंस जो भी हैं रिलेटेड विथ पी बॉक्स, इनिशियल परम्यूटेशन, फाइनल इनवर्स परम्यूटेशन, उनको हम कंबाइन करेंगे विथ द जो हमने फर्स्ट स्टेप में लीनियर अप्रोक्सीमेशन किया था। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करेंगे, कंबाइन ऑल लीनियर अप्रोक्सीमेशन, कंबाइन करेंगे हम ऑल लीनियर अप्रोक्सीमेशन विथ द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेशन, यू कैन डू दैट। और फाइनली यूज करेंगे लीनियर, इस लीनियर अप्रोक्सीमेशन को जो हमें सेकंड स्टेप में मिला है, इसको हम यूज करेंगे टू गेस दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ की। ओके, सभी को समझ में आया? यस स्टूडेंट, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। चलिए, नाउ आई एम गिविंग यू अ लिंक फॉर टुडेज अटेंडेंस। डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस, okay student, I have provided you link for today's attendance, kindly fill it up. मैं आपको ये जो क्रिप्टोनाइटिक अटैक होता है इसके लिए एक नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, प्लीज लुक इनटू दैट, यू विल गेट द थ्योरी पार्ट देयर आल्सो। एंड जो आपका डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस होता है, ये लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस का ही फर्दर पार्ट होता है, और इसको जबकि डिजाइन किया गया था इनिशियली 1990s में, और ये डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस जो होती है इट इज सिमिलर विद द लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस। डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस जो होता है बेसिकली ये लुक करता है टू फाइंड द लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, ठीक है, लाइक्लीहुड एस्टिमेशन कहने का मतलब है कि कितना लाइकली है कि ये चीज आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया होगा कि जब आप इफ यू चेंज अ सिंगल बिट इन द इनपुट पैटर्न, देन at the final output you get the half of the bit it is changed। तो इस टाइप का हम क्या करते हैं, ट्रू अप्रोक्सीमेशन निकालने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस। ओके, डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस तभी पॉसिबल है इफ देयर इज अ रिलेशन दैट कि अगर हम अल्फा बिट में चेंज करें तो हमें बीटा बिट में चेंज मिले।
अल्फा बिट कहने का मतलब है कि अगर हमने 2 बिट में चेंज किया तो हमें कितना बिट में चेंज मिला, और ये क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर हम 50 प्लेन टेक्स्ट है, उसमें हर एक प्लेन टेक्स्ट में 2-2 बिट का चेंज करते गए, तो फाइनल हमें, अगर हमने एज्यूम किया कि हमने 2 बिट का चेंज किया और हमें 34 बिट में फाइनल हमें चेंज मिलना चाहिए, अगर हमारा ये अजम्पशन है, तो ये 50 के 50 प्लेन टेक्स्ट सभी में ये चीज फॉलो होने चाहिए। और ये जब हमारा फॉलो होगा तो ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन get a help of XOR operation and we can find out that what is the possible keys. Okay, and एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक करते थे ना, हम ब्रूट फोर्स अटैक करते थे, वो 2⁻56 में हमें ये बताता था, या कहे उसको हाफ भी कर ले कि 2⁻55 पॉसिबिलिटीज होती थी, तब हमें ये बता पाता था। बट अगर हम डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस करेंगे तो ये उससे लेस में हमें बता पाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको क्लास में इंट्रो किया था इसको, कि ये जो डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस अटैक होता है, ये भी आपका चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक होता है, याद रखिएगा, इट इज अ चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक। ओके, 24 स्टूडेंट हैव रिस्पॉन्डेड। सर, जो क्लासरूम में आपने नोट्स प्रोवाइड करा है उसमें अटैक्स के टाइप्स उसके दिए हुए हैं। यस, अटैक्स के टाइप्स दिए हूं सर, लेकिन जो आपने बताया वो नहीं है, कुछ और है। उसमें पैसिव एंड एक्टिव अटैक होगा। यस सर। ओके, ये मैंने क्रिप्टोएनालिटिक अटैक बताया है, ये मैंने जो आज बताया ना, वो मैंने क्रिप्टोएनालिटिक अटैक बताया है। ओके, बोथ आर डिफरेंट थिंग। यस सर, ये क्रिप्टोग्राफिक अटैक है। Yes. Okay. So, yes, student, do you have any kind of problem or question related with today's session? सभी ने अटेंडेंस रिस्पॉन्ड कर दिया? सभी ने अटेंडेंस रिस्पॉन्ड कर दिया? ओके, okay, if you have any kind of query, then you can ask your queries, otherwise you are permitted to leave the class. Okay, let's stop today's session right here, right now. Thank you, student, and have a nice day.